and welcome back everyone to your own Dizzy Talk, and today we're going to talk about semicircular canals in just 5 minutes. After this whole video you will be able to learn कि semicircular canals क्या हैं और उसकी anatomy क्या है and what are the actual anatomical figures which are involved in semicircular canals, and of course I assure you कि after this whole video you're good to go with the semicircular canals. So let's go. So before starting, let me give you my introduction. I am Harjot Kaur Duna and I'm an audiologist and speech language pathologist, and I post videos about audiology, speech pathology, vestibular and other content as well. Also I post vlogs about lifestyle and other things as well. So do subscribe my channel and we're good to go. So yeah, let's start with what are semicircular canals. Before starting कि semicircular canals होते क्या हैं, हमको ये देखना है कि what where are they present. I talked about this in my earlier video. It was regarding where and what is the actual vestibular system involved हमारे ears में होता है, and then also it is processed inside the brain. Okay, so semicircular canals are present inside the inner ear of both our ears. Okay, तो हमारे जो inner ear है दोनों लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों के अंदर हमारे सेमीसर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, आप बुलेट पॉइंट्स में नोट कर सकते हो एंड वी आर जस्ट बी लर्निंग इट इन जस्ट 5 minutes. ऑलराइट, सो या, सो semicircular canals are 3 of them each. Alright, so 3 we have on the left and 3 we have on the right. Okay, so all 3 have their own specific names. I'll be talking about all of them, but before moving on to or jumping on to the names, हमको ये देखना है कि वो हेल्प किस लिए करते हैं. जो semicircular canals होते हैं वो हेल्प करते हैं to actually let us know and actually posturize कि हमारा जो एंगुलर और जो रोटेशनल मूवमेंट है बॉडी का, जब भी हमारी बॉडी मूव कर रही है या हमारा हेड मूव कर रहा है, तो एक्चुअल में बताना कि सेमीसर्कुलर कैनाल्स हमको ये चीज़ एग्जिबिट करते हैं और एक्चुअल में हमको न्यूरॉन्स तक टिल टू आर ब्रेन दे सेंड्स अस सिग्नल्स के वेयर आर ब्रेन इज एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑलराइट, सो या, स्टार्टिंग विद all the 3 names. So we have 3 semicircular canals. One is the lateral, उसको horizontal भी बोल देते हैं. Second is the anterior, उसको superior भी बोल देते हैं. And the posterior. Okay, before reminding, अब इन सबके names हैं, लेकिन इन सबको याद करना वो थोड़ा सा हमारे लिए busy बोल सकते हैं कि थोड़ा सा hard हो जाता है. Well, it becomes easy when you learn it from your 3 fingers, right? तो 3 fingers में कैसे आप याद करोगे? Just do it something like this. सो वी हैव ऑलरेडी यूज दिस फॉर्मूला बिफोर, जब हम मैथ्स में पहले याद करते होते थे कि 90 ईच डिग्री. ओके, सो स्टार्ट रिमेंबरिंग इट समथिंग लाइक दिस कि वी हैव 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड मोस्टली टू द मोस्ट एक्सटेंट दे आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अब क्या है कि वो सेम टू द लेफ्ट में भी ऐसा होगा एंड देन टू द राइट में दे विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, सो वेन एवर यू रिमेंबर द पीछे वाला इज द पोस्टीरियर. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो वो कैसी होती है? समथिंग लाइक दिस. द एंटीरियर और द सुपीरियर वो कैसी होती है? समथिंग लाइक दिस. एंड जो लैटरल होती है, दिस इज समथिंग लाइक दिस. लैटरल मीन्स हॉरिजॉन्टल, आई टोल्ड यू. सो हॉरिजॉन्टल इज समथिंग लाइक दिस. तो वो दोनों ईयर्स में ऐसे होगा. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर द सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड देयर प्रेजेंस. जब भी आपको हॉरिजॉन्टल के लिए याद रखना है, देयर इज वन सिंगल बुलेट पॉइंट ऑल्सो फॉर हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज नॉट कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, बट हॉरिजॉन्टल से इट इज around 30 degree from the horizontal. So it is not just straight as a horizontal, but it is 30 degree from the horizontal. That's how you remember semicircular canals and their angles. All right, so let's move on to कि actual में हमको आगे उससे सेमीसर्कुलर कैनाल से रोटेशनल और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे मिलता है. सो नाउ वी नो कि सेमीसर्कुलर कैनाल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं. वी ऑल्सो शुड नो कि देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट at the base of each semicircular canal, that is called the ampulla. Ampulla means something which is swollen मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद करने में easy हो जाए. Okay, so every semicircular canal has some that swollen structure which is known as the ampulla. और ampulla के अंदर क्या होता है? endolymph होता है. We already know that endolymph और कहाँ पे होता है? It's also in the cochlea as well. Okay, cochlea में कौन से अलग अलग हमारे 3 parts होते हैं that we'll talk about in some other video. But yeah, so endolymph
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज एंडोलिम्फ क्या करता है, जब भी हमारा हेड मूवमेंट होता है या फिर हमारा कुछ भी रोटेशनल मूवमेंट, एनी मूवमेंट और सो, तब क्या होता है, जो एंडोलिम्फ है दैट इज अ लिक्विड दैट मूव्स. ओके, सो व्हेन इट मूव्स, जो एम्पुला के अंदर बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं हमारे. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, you can go watch it and you can understand what I am talking about. Okay, so there are a lot of hair cells which are present on the crista. Crista means that sensory organ जो ampulla के अंदर होता है, which is something like this, dome shaped होता है. Okay, so अब उसके ऊपर बहुत सारे hair cells होते हैं. There are lot of hair cells. Okay, hair cells are important for sending the neurons or the signals to the brain and then afterwards processing वगैरह सब कुछ होती है. Okay, so what I am talking about is, क्या है हमारे पास बहुत सारा हेयर सेल्स हैं. व्हाट हैपन्स इज, उन सब हेयर सेल्स में से एक सबसे लॉन्गेस्ट हेयर सेल रहता है, दैट इज द किनोसीलियम. उसको बोलते हैं किनोसीलियम, एंड इट मूव्स इन जस्ट वन डायरेक्शन. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वो एक वन डायरेक्शन में मूव करता है. दैट वॉज ऑल फॉर हेयर सेल्स. सो वेन एवर देयर इज सम मूवमेंट, तब क्या होगा, दैट एंडोलिम्फ विल मूव, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंडोलिम्फ हेयर सेल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे. whatever is it is present in each and every semicircular canal, तो वो अपने हिसाब से वो मूव करेंगे. That's how the movements are being detected. So now you know कि whenever we feel dizzy, actual में होता क्या है. तो जो हमारा एंडोलिम्फ होता है, दैट इज इफ वी सिंपली सिटिंग, अगर हम ऐसे ही बैठे हैं तो क्या है, हमारा जो एंडोलिम्फ है हमारे सेमीसर्कुलर कैनाल्स के अंदर, वो क्या है, एक इनर्शिया वाली फॉर्म में. इनर्शिया मीन्स एन एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टे एज इट इज, लाइक जैसे अपनी वो जगह पे है वो वैसे ही अपनी जगह पे रहेगा. ओके, सो व्हाट हैपन्स इज, जब भी वो इनर्शिया को डिसरप्ट होता है एंड देन वी मूव, है ना, वी मूव आवर हेड और समथिंग, दैट एंडोलिम्फ इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट इनर्शियल पोजिशन टू समथिंग कॉल्ड एज मूवमेंट. उसके बाद ही हमारे डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं वो हमारे फ्रॉम द हेयर सेल्स दे मूव अराउंड टू द ब्रेन फॉर द प्रोसेसिंग. ओके, बट येस वी ऑल्सो नीड टू नो फॉर द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट कि जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है दैट वर्क्स इन टैंडम. इन टैंडम मीन्स इन रिलेशन. दीज रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हमको एक्चुअल में बात करनी होती है फॉर एन ओवरऑल व्यू. वाई? First of all, I'll tell you what these relationships are, and then afterwards I'll tell you what their significance is. It's not that long, it's really easy. So first is जो relationship की मैं बात कर रही हूँ, that is कि हमारा जो left और right का जो हमारा semicircular canals है, they move and they work in tandem. That means जो हमारा, you already know this was our 3 semicircular canals from the both sides. अब we have to remember कि जो for example let's take हमारा जो anterior left side का हमारा कैनाल है, लेफ्ट एंटीरियर कैनाल इज वर्किंग सेम एज और इज वर्किंग इन पोजीशन एज द राइट पोस्टीरियर कैनाल. ओके, लेफ्ट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, वाइस वर्सा, लेफ्ट पोस्टीरियर एंड राइट एंटीरियर. सो दे वर्क इन टैंडम. दैट मीन्स यू हैव समथिंग लाइक दिस. जब भी याद रखना है, कैसे याद रखना है, इन अ क्रॉस फॉर्म. सो वेन एवर यू हैव टू रिमेंबर दिस वंस पोस्टीरियर, anterior and posterior, so they work in tandem. All right, also हमारी जो एक सेमीसर्कुलर कैनाल अब बची है which was horizontal या फिर जिसको lateral बोल रहे थे हम लोग, वो क्या है, दोनों obviously they are on a horizontal plane. तो वो horizontal plane में है तो वो क्या होगा, they work together in a pair. Okay, so these were 3 tandem relationships which we needed to know. And why are these important? क्यों? क्योंकि जब भी हमको मूव करना होता है या जब भी हमारी बॉडी मूव करती है किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या किसी भी 3D स्पेस में होती है, वी आर नॉट जस्ट इन 1D स्पेस, वी आर इन अ 3D स्पेस. तो जब भी हमको मूव करना होता है या हम पता करना होता है कि हम अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट का बिल्कुल आपस में मेल होना ज़रूरी है. दिस इज जस्ट इन अ सिंपल लैंग्वेज एज मच एज आई कैन एक्सप्लेन यू. तो क्या है कि 3D इमेज फॉर्म करना, ऑल्सो अब वो 3D इमेज बन गई है लेकिन एक्चुअल में उसको विजुअलाइज भी तो करना है. सो दीज विजुअलाइजेशंस आर यूज्ड और आर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम आवर विजुअल सिस्टम. हमारे आईज से हमको देख के हम फिक्सेट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर मूविंग, ठीक है, हम एक सिंपल एक सड़क पे मूव कर रहे हैं एंड देन हम देख रहे हैं कि साइड से एक कार आ रही है एंड वी हैव टू क्रॉस द रोड. वी कैन फिक्सेट ऑन द कार एंड देन वी कैन स्टिल मूव. हाउ? क्योंकि हमारे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है कि एक तो हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक हमारी आइज जो है हम वो फिक्सेट कर रही हैं टुवर्ड्स द कार दैट इज कमिंग, एंड वो कितना टाइम लगाएगी आने में, हम कितने पेस से चल रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं.
So these all things are really important while you consider the vestibular system and the semicircular canals. So that is how it is really important part of our vestibular system, and that is why इस चीज को एकदम से अच्छे से remember करना is also really important. That was it for the semicircular canals. Okay, so before ending the video, let me tell you that if there is some disruption or anything which is happening to the vestibular system, especially हमारी semicircular canals को, तो बहुत सारे disorders हो सकते हैं जिसकी बात हम next videos में करेंगे. This was all about the semicircular canal part, and if you have any doubts, any questions, you can comment down, and also please subscribe to my channel, and I would love to make more videos about it. Thank you. Bye.